श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। আমি এবাৰ সকলোৱে ভগৱানৰ জয়কাৰা লগাওঁ। আজি চাদিৰ পাৰ্টি দিন হয়, সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ ভগৱানৰ এবাৰ জয়কাৰা লগাওঁ। प्रेम से बोल आनंद कंद भगवान की जय। श्री माता श्री जय। पति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। मानव धर्म की जय। बंदो गुरु पद कंद कृपा जासो बचन गुरु को कीजिए वंदवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने वृंग को गुरु कर आप समान। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान। परम पिता परमात्मा उपस्थित आदरणीय साधु सन्तসকল আৰু আজি চিঙৰি জানৰ শাখাৰ গুৰুৰ ভক্তৰ গৃহত আজি শুভ বিবাহৰ উপলক্ষে এটা মহান জ্ঞান যজ্ঞৰ সন্তৰ সমাগম ভক্তৰ সমাগম হৈ আছে। তো এই গতিকে চাওক ভক্তসকল, আজি আমি বহুত সময়লৈ ভজন কীৰ্তন আৰু সন্তৰ দ্বাৰা আমি সৎসং শুনি আছিলোঁ, ভক্তৰ দ্বাৰা সৎসং শুনিছিলোঁ। সকলো শাখাৰ পৰা আমি সকলোৱে দলে বলে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ। আজি আমাৰ বৰিষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকল, মানৱ উত্থান সেৱাৰ সমিতি, মানৱ ধৰ্মৰ সেৱা দল সদস্যগণ, আমি সকলোৱে ভগৱানৰ গুণগান গাই আজি এই শুভৰ বিবাহৰ সকলোৱে আশীৰ্বাদ দি আমি শুভৰ বিবাহৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কৰিছোঁ। তো ঠিক তেনেধৰণে কৈছে যে সঁচাকৈ চাওক, জন্মৰ বিবাহ আৰু মৃত্যু এইবিলাক ভগৱানৰ হাততে আছে। ভগৱানৰ হাতত থাকে। যেতিয়া নেকি এজন জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ বিবাহৰ কাৰণে ল'ৰা আৰু ছোৱালী, কন্যা আৰু দৰা যেতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনত আগলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ এটা শুভ বিবাহেৰে এটা ঘৰ যেতিয়া নেকি গৃহস্থী জীৱনলৈ আগবাঢ়ে, প্ৰথম যিদিনাখনি চাবি হয়, বিবাহ হয়, সেইদিনাখনি আমি পণ্ডিত মাতি অনা হয়। আৰু সেই পণ্ডিত মাতি অনা হয়। পণ্ডিত যেতিয়া আহে, নীতি নিয়মৰ যেনেকৈ চাবি বিবাহ ল'ৰা ছোৱালী কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত মণ্ডপত বহাই লৈ খুব ধুনীয়াকৈ পণ্ডিতে নিজৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে যজ্ঞ হৱন কৰি ধুনীয়াকৈ বিয়া পাতি দিয়ে। যেতিয়া নেকি বিয়া পাতোঁতে আগত যেনেকৈ নিয়ম কৰিবৰ কাৰণে পণ্ডিতে খুব ধুনীয়াকৈ বহাই ল'ৰা ছোৱালীক, দৰা কন্যাক বহাই লৈ নিয়মৰ বিধি বিধানৰ মতে যেতিয়া নেকি
পণ্ডিতে এডাল লগুণ দি ধুনীয়াকৈ ক'লে যে ইয়াৰ কন্যাক কৈছে ইয়াত তোমাৰ পতি হয় আৰু দৰাজনক কৈছে যে এয়া তোমাৰ পত্নী হয়। সেইদিনাখনি চিনাকি কৰাই দিয়ে যে এটা হাতত লগত এটা মালা লগায়। ঠিক তেনেধৰণে চাওক, সেইদিনাখনি সকলোৱে জানে, সমাজে জানে, সকলোৱে জানে যে সেইদিনাখনি এটা পতি পত্নী বিবাহ পৰিচয় হয়। ঠিক তেনেকৈ ভাগৱত ভক্তসকল আজিও আমাৰ এই মানৱৰ জীৱনত, আজি সকলো মানৱৰ জীৱনত কি আছে? আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ সকলো লগতে আছে। সেই আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ কিন্তু লগত থাকিলেও কি হ'ব? কিন্তু চিনা পৰিচয় নহয়। সেই চিনা পৰিচয় হ'বৰ কাৰণে কি কৰিবলগীয়া হয়? সময়ৰ তত্ত্ব দেখি গুৰুজনাৰ, সময়ৰ সাধু সন্তৰ ওচৰত গৈ যেতিয়া নেকি আত্মাৰ, জীৱাত্মাৰ, পৰমাত্মাৰ চিনাকি হয়, যিদিনাখনি আত্মাৰ জ্ঞান প্ৰাপ্তি হয়। যেনেকৈ পতি পত্নী চিনাকি হ'বৰ কাৰণে পণ্ডিতে ব্ৰাহ্মণে আহি চিনাকি কৰাই দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ আজি আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মিলন হ'বৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব? আত্মাৰ জ্ঞান লাগিব। সজ্জনসকল আছে, আমাৰ লগতে আছে প্ৰভু ভগৱন্তৰ, কিন্তু চিনাকি হ'বৰ কাৰণে, জানিবৰ কাৰণে সময়ৰ তত্ত্ব দেখি গুৰুজনাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। বিনা গুৰু কেতিয়াও জীৱাত্মাৰ, পৰমাত্মাৰ চিনাকি নহয়। এই গতিকে আজি চাওক, এটা সংসাৰিকক লৈ, সংসাৰিক ভৌতিক আৰু আধ্যাত্মিক, ভৌতিক আধ্যাত্মিক এইটোৱেই চিন বুলি কৈছে যে ভৌতিকত এটা বিবাহ উপলক্ষে চিনাকি হয়, আৰু আধ্যাত্মিকত কি কৈছে? জীৱাত্মাৰ, পৰমাত্মাৰ মিলন কোনদিনাখনি হয়? যিদিনাখনি আমি সদ্গুৰুৰ চৰণত সান্নিধ্যত যেতিয়া আমি প্ৰাপ্তি হ'ব, সেইদিনাখনি আমাৰ জীৱাত্মাৰ, পৰমাত্মাৰ মিলন হয়। সজ্জনসকল সেইটোৱে কৈছে যে এটা আধ্যাত্মিক আৰু ভৌতিক। আমি সংসাৰত চলিবৰ কাৰণে আধ্যাত্মিকৰ জীৱনটো আমি লাগিব, কিন্তু সংসাৰত চলিবৰ কাৰণে ভৌতিকৰ জীৱনত আমি যাব লাগিব। যেতিয়া আমাৰ আত্মাৰ মিলন, এটা ভক্তি প্ৰাপ্তি কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব? আধ্যাত্মিকৰ ৰাস্তাত আমি যাব লাগিব। যেনেকৈ আজি এইখন ঘৰত আমাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ, তেওঁ বিবাহৰ উপলক্ষে আজি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে। আজি 2-3 দিনৰ আগত খুব ধুনীয়াকৈ শাদী বিবাহ হৈ গ'ল। ঠিক তেনেধৰণে আজি চাওক, সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি যেনেকৈ আজি সকলোৱে জনাজাত কৰিবৰ কাৰণে যে এইখন ঘৰৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আজি বিবাহ বহু আনিলে, ঠিক তেনেকৈ বহু বোৱাৰীৰ কি নিয়ম আছে, বোৱাৰীৰ নিয়মটো আমি পালন কৰিব লাগিব। যেনেকৈ আমাৰ আগত সাধু সন্তসকলে কৈ গৈছিলে যে যিখন ঘৰৰ বোৱাৰী কি হয়? লক্ষ্মী মা হয়। সেই লক্ষ্মী মাৰ উদ্দেশ্যক আমি পালন কৰিব লাগিব। যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ যে ভগৱান ৰামৰ সময়তো যেতিয়া সীতা মাক লৈ আহিছিলে, সীতা মাকে ইমান ধুনীয়া সীতাক বুজাইছে, চোৱা সীতা, তুমি যেতিয়া নিজৰ শহুৰ ঘৰত যাবা আৰু সেই শহুৰ ঘৰত গৈ তুমি কেতিয়াও ঘৰৰ মা দেউতাৰ কথা তুমি তাত কেতিয়াও নকবা, মা দেউতাৰ বখান কেতিয়াও তুমি তাত শহুৰ ঘৰত গৈ নকবা, কিন্তু তুমি ধুনীয়াকৈ আজ্ঞা পালন কৰিবা।
সেইটোৱে হৈছে এটা বোৱাৰীৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। কিয়নো আমি বোৱাৰীৰ নিচিনা হৈ থাকিবৰ কাৰণে শাস্ত্ৰৰ নীতি, শাস্ত্ৰৰ আদেশ, সন্তৰ আদেশ, সময়ৰ ক্ষেত্ৰত গুৰু আদেশ লৈ আমি পালন কৰিব লাগিব। কিন্তু আজি তেওঁ বোৱাৰীৰ জীৱনত এইখনেই নিজৰ ঘৰ হয়। এইখনত নিজৰ ঘৰ, জন্ম দিয়া মা দেউতাই সেই ঘৰ আজি এৰি থৈ আজি এইখন ঘৰত কেনেধৰণে আমি চলিব লাগিব, কেনেধৰণে আমি থাকিব লাগিব, আমাৰ মাত কথা কেনেধৰণে হ'ব লাগিব, কেনেধৰণে আমাৰ ব্যৱহাৰ পাতি হ'ব লাগিব, সেইখিনি এজন জ্ঞানী কৰ্তব্যৰ দৰে আমি চলিব লাগিব। তো এই গতিকে চাওক ভক্তসকল, আমি কেতিয়াও ঘৰৰ মা দেউতাৰ ইয়াত আমি ক'ব নালাগে, কিন্তু আমি শহুৰ শাহুৰ আজ্ঞা মতেহে আমি চলিব লাগিব। তো আগতে এটা আহক ভজন আছে, আমি সকলোৱে গাওঁ। প্ৰেম সে ভৰি আনন্দ কান্দ ভগৱান बत सोने की काबिल नहीं है। जागो जागो अरे देश वालों, बत सोने की काबिल नहीं है। महापुरुष जगाने को आए, होगा सोने की महापुरुष जगाने को आए, अब सोने का काबिल नहीं है। जागो जागो अरे देश वालों, बत सोने की काबिल नहीं है। जागो जागो अरे देश वालों, वक्त सोने की काबिल नहीं है। महापुरुष जगाने को आए, होगा सोने की काबिल नहीं है। महापुरुष जगाने को आए, वक्त सोने की काबिल नहीं है। देश की दुर्दशा हो रही है,
जब जब भी भक्त पे आया महापुरुष आने को आया तब तस्वीर धर्मधारी बस सोने की तारीफ नहीं है तब तस्वीर धर्मधारी सोने की तारीफ नहीं है जागो जागो रे देश वालों बस सोने की तारीफ नहीं है जागो जागो रे देश वालों बस सोने की तारीफ नहीं है प्रेम से जा बाहर को न जाने गुरु चरणों में मन को लगा ले प्रेम से जा बाहर को न जाने गुरु चरणों में मन को लगा ले उनके सीने में हाथों की है सोने की ताबीर नहीं है उनके सीने में हाथों की है सोने की ताबीर नहीं है जागो जागो रे देश वालों बस सोने की ताबीर नहीं है जागो जागो रे देश वालों बस सोने की ताबीर नहीं है बस सोने की ताबीर नहीं है बस सोने की ताबीर आदरणीय प्रेमी भक्तসকল কি বুলি ক'লে जागो जागो रे देश वालों बत सोने का नहीं तो अभी अभी जो हम लोग सुन रहे थे जब संसार में भगवान जब मनुष्य शरीर लेकर आता है और आने के बाद क्या संदेश देता है भक्तों को जागने का देशवासियों को जागने का संदेश देता है साथ साथ में साधु संतों को भी लेके आते हैं सज्जनों तो वो चीज को अब हमको थोड़ा सा महान पुरुष आए बट सोने का कभी नहीं ये माया मोह की नींद में मत सो सोना नहीं है जागना है भाई जागना अब जागन की बारी क्या जागे नाना का सोए पाँव पछाड़ अब पाँव पछाड़ के तो एक दिन जाना ही है तो अब हमको जागने के लिए संदेश दे रहा है महान पुरुष क्यों यही तो मानव का जीवन में क्या है जैसे अभी यहाँ पर हम लोग पहुँच गया और पहुँचने के बाद ये खत्म हो जाएगा फिर हम लोग अपनी अपनी घर चले जाएंगे तो ठीक इसी प्रकार से हम संसार की मनसब में आ गए और आने के बाद संसार से एक दिन जाना भी है तो कहाँ चलन चलन सब कहे मुहे अंदेशा और नाम ना जाने गांव का पहुंचेगा कहीं ठोस जाना है तो सबको ही कह रहा है भाई जाना तो है कहाँ जाना है अभी इस घर में आने के लिए आज हमारे ये भाई विश्वनाथ भाई नहीं होता हम भी कहीं रास्ता में भटक जाता था हम भी कहीं रास्ते में भटक जाता था क्योंकि एक दिन मैंने आई थी और रात के समय में मुझे रास्ता इतना मालूम नहीं है तो तिनसुकिया से यहाँ आने के लिए रास्ता हम भटक जाएंगे तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितना भटकना पड़ेगा है कि नहीं
जब भगवान के घर में जाने के लिए अब हमको कितना भटकना होगा। तो इसीलिए गुरु महाराज जी ने, महापुरुषों ने कहा भाई जाओ साधु को संगत करो, सत्संग में बैठो, सत्संग सुनो, वो भगवान के घर में जाने वाला एड्रेस को ले लो। वो सही एड्रेस जब मिलेगा तब हमारा पास कोई डर भय कुछ नहीं है। तो इसीलिए आज ये साधु संतों क्यों आते हैं? वो सही एड्रेस को बताने के लिए। आज हमारे भाई जो है, कुंदन भाई, सपना बहन, ये लोग का एक शादी का बहाना से आप लोग को सत्संग मिल रहा है। कोई ना कोई एक बहाना तो चाहिए। ये शादी का बहाना से आज साक्षात संत महात्मा का सत्संग मिल रहा है। एक मुझे बात याद आ गया, ऐसे ही एक गांव में एक घर में एक बेटा था और माता पिता है, तीनों घर में है, माता पिता और एक बेटा। तो गांव का घर है, तो माँ बेचारी घर का काम करते करते शरीर बूढ़ा हो गया। तो बेटा से एक दिन कहा, बेटा देखो मैं तो अभी काम करते करते मैं भी घर का काम कितना करेंगे, मैं भी अभी शरीर मेरा कमजोर हो गया, मेरा भी बुढ़ापा समय आ गया। बेटा तुम्हारे लिए एक बहू लाना है। माँ ने कही, देखो बेटा बहू लाना है, मेरा बस का अभी नहीं है। तो बेटा ने कहा ठीक है, तो बहू तो आप ही लोग देखेंगे, आप जैसा देखेंगे मेरे लिए वही हो जाएगा, मेरा भी पसंद होगा। तो जाइए आप बहू देखने के लिए। तो आस पास के लोगों को पूछ पाछ करके कितना दूर में जा करके माता पिता ने जा करके लड़की देखा, देख करके प्रसन्न हुआ, बहू बहुत सुंदर है, तो पसंद हो गया। होने के बाद घर में आया, दिन तारीख ठीक किया, ठीक करके खूब धूमधाम शादी का आयोजन किया। तो शादी का आयोजन कर दिया, आस पास को जितना लोग था सबको बुलाया, भाई हमारा एक बेटा है, बेटा के लिए शादी है और सबको ये आ जाना। तो जिस दिन शादी किया सब कोई आए और धूमधाम से माँ अपने बड़ा को भेज दिया और गया, धूमधाम से बहू को लेके आया। तो बेचारा बहू तो लेके आया, अब तीनों हो गया, 4 हो गया, बेटा बहू माता पिता 4 आदमी। तो थोड़ा दिन के बाद में बहू से माँ बोलने लगी, बहू अब मेरा तो छुट्टी हो गया, अभी बहू आ गई, अभी बहू काम करेगी, खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी, मेरा थोड़ा गांव में कहीं जाना है, मैं तो कितना साल हो गया गया नहीं, तो इसलिए मैं कहीं गांव में जाना है, किसी से मिलना है। देखना बहू आने का मेरा थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो घर में अंधेरा आने नहीं देना, घर में उजाला बना के रखना, थोड़ा शाम भी हो सकता है, आते आते अंधेरा भी हो सकता है, घर में अंधेरा आने नहीं देना। तो बहू को समझा बुझा करके माँ चली गई। माँ चली गई तो सचमुच माँ आते आते तो अंधेरा हो गया। कमरे के अंदर गया, बहू देखते हैं, अरे भाई अंधेरा हो गया, क्या करूं, मुझे सासू माँ ने तो बोल के गई है ये अंधेरा आने मत देना, अभी करूं क्या, अंधेरा तो घुस गया अंदर। कमरे के अंदर अंधेरा घुस गया, बाहर में थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई दे रहा है, अभी क्या करूं क्या करूं।
तो बहू ने क्या क्या, अभी तो कुछ करना तो होगा, नहीं तो सासू माँ आएगी फिर मुझे क्या बोलेंगे। तो बहू ने क्या क्या, बहुत लंबा सा एक लाठी लेके आ गया। तो लाठी लेके आ गया, कमरे के अंदर जा करके खूब लाठी घुमाने लगा। भाई अंधेरा को भगाना है, ये अंधेरा को भगाना है। कैसे अंधेरा आ गया, अभी उपाय क्या है। और धीरे धीरे ज्यादा ही अंधेरा हो रहा है। तो बहू क्या, लाठी पूरा घुमाना शुरू किया। लाठी घुमाते घुमाते शादी में जो भी सामान लाया था, बर्तन लाया था, जो भी सामान लाया था, लाठी के घुराते घुराते बर्तन वर्तन सब टूट फूट गया, गड्ढे गड्ढे सब टूट फूट गया, बर्बाद हो गया। तो अंधेरा भागता ही नहीं है, अंधेरा तो भागता ही नहीं है। तो थोड़ा देर के बाद में सासू माँ आ गई। सासू माँ बहू बहू आवाज दिया, बहू बुआरी कहाँ है, कहाँ है। तो बेचारी वो अंदर से निकल के आती है, माँ से प्रणाम करके, माँ मेरा गलत हो गया, मैं अंधेरा को इतना पिटाई किया, लेकिन अंधेरा भागता ही नहीं है, ज्यादा ही अंधेरा हो गया। अभी क्या करूं, मेरा तो कोई गलती नहीं है, आपने तो बोली थी जो अंधेरा को आने नहीं देना। इतना अंधेरा को पिटाई किया, लेकिन अंधेरा भागता ही नहीं है, मेरा क्या दोष है। तो माँ ने कहा, अरे मूर्ख, अंधेरा कोई लाठी से भागने वाला है क्या, अंधेरा कोई लाठी से नहीं भागता है। अंधेरा को भगाने के लिए दिया जलाना पड़ता है। दिया एक दीपक का जरूरी है, अंधेरा को जलाने भगाने के लिए, लाठी से नहीं भागता है। तो इसी प्रकार से माता पिता भाई बहनों, आज हर आदमियों के अंदर अंधेरा है, अंधेरा छुपा हुआ है। तो ये अंधेरा को कोई लड़ाई से, झगड़ा से, कोई मारपीट से, कोई बंदूक से ये भागने वाला नहीं है सज्जनों। काम को, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीज को भगाने के लिए एक ज्ञान का दीपक जलाना होगा सज्जनों, ये ज्ञान का दीपक जलाना होगा। आज यहाँ ये दीपक जलाया हुआ है, बत्ती जलाया हुआ है, इसमें बार बार तेल डालना पड़ा है, लेकिन हमारे अंदर जो दीपक जला हुआ है वो कभी तेल का जरूरी नहीं, कभी रुई का जरूरी नहीं है, वो हर घड़ी जलाया हुआ है। लेकिन वो चीज को जानने के लिए समय के सतगुरु के पास जाना होगा, तभी वो हमारे अंदर, बाहर भी उजला है, अंदर भी उजला सज्जनों प्रकाश दिखेगा। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया भीतर बाती। ये परम प्रकाश जो है, इसमें कोई दिया का जरूरी नहीं है, घी का जरूरी नहीं है, बिजली का प्रकाश जरूरी नहीं है सज्जनों। आइए माता पिता भाई बहनों, अपने अंदर में जो दिया जलाया हुआ है वो चीज को प्रैक्टिकल प्राप्ति करना है। वही है मानव धर्म, वही गुरु महाराज जी ने मानव धर्म का संदेश फैला रहे हैं। नहीं तो ये जीवन जिंदगी कहाँ जाएगा। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, कौन किसके साथ में जाएगा। ये 2 दिन का ये रंग मनसब में हम आए हैं, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, ये चला चली का खेला है सजो। आज प्रभु की कृपा से, अगर प्रभु जी का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर प्रभु जी का, अगर प्रभु का कृपा नहीं होता, आज यहाँ सब हम लोग एकत्रित होकर के बैठ पाता था। आज उनकी
की कृपा से सब लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, वही मालिक की गुरु महाराज की कृपा से, एक शादी का बहाना से सज्जनों आज ऐसे सत्संग मिल रहा है। क्यों? आज ये सब कुछ दुनिया अपना बना सकता है। कैसे? भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से अपना बना सकता है, लेकिन प्रभु के बिना अब हमारा जीवन खोखोला है। ये जीवन खोखोला है प्रभु के बिना। तो इसीलिए आज साधु संतों कहाँ है राम नाम के हीरे मोती, संत बिखरे रहे गली गली, ले लो ले कोई राम का प्यारा, आवाज लगाई गली गली। आज साधु संतों ने गली गली में आवाज लगा रहा है कोई सुनने वाला है? गली गली में आवाज लगा रहा है, हे मानो कोई राम का प्यारा, कोई शिव जी का प्यारा, कोई कृष्ण का प्यारा, कोई हनुमान जी का प्यारा है, आओ जगो। संतों ने हीरा मोती ले लेके घूम रहा है। एक हीरा मोती तो बाहर में मिलता है सज्जनों, बाहर का हीरा मोती तो कभी खो भी जाएगा, टूट भी जाएगा, फूट भी जाएगा, लेकिन अंदर का हीरा मोती कभी खोने वाला नहीं। अंदर का हीरा मोती कभी टूटने वाला नहीं है, जिसके अंदर प्रभु राम समाया हुआ है। हनुमान जी ने सारे के सारे समाज को क्या दिखाए थे? समाज को क्या दिखाए हनुमान जी ने? लोगों ने कहा, सीता माँ ने हनुमान जी को एक माला दे दिया, हनुमान ये माला गले में लगा दो। हनुमान जी ने गले में कहा माला लगाएगा? बोले क्या करना है गले का माला? हनुमान जी ने हाथ में लेके टूटना फूटना शुरू किया। तो समाज में बोला, अरे भाई ये बांदर कुछ जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता है, इतना सुंदर से सीता माँ ने माला दे दिया और टूट फूट करके फेंक दिया। तो हनुमान जी ने कहा, मैंने कहा टूटा फूटा है, माला तो मेरे अंदर ही है, गला माला तो फूटे छिटे, हृदय माला तो कहाँ छिटे। सज्जनों, भगवान प्रभु मेरे अंदर ही है, राम और सीता मेरे ही अंदर है। उस समय में अपने छीने फाड़ करके सीता और राम को दर्शन कराए थे। तो इसका मतलब क्या था? प्रभु सबके अंदर है, प्रभु बाहर नहीं है, सबके अंदर प्रभु है, लेकिन है तो कहाँ है? वो जानने के लिए ही जो एक जनाने वाला पास में जाना होता है। कौन जनाता है? आज ये साधु संतों, गुरु महाराज जी ने कहा, संतो मिले तो मैं मिल जाऊं, संतो मुझे न्यारा, संतो मिले तो मैं, संतो मिले तो मैं भगवान मिल गया। सोच लो, ये मेरा ही संतो है, ये मेरा ही आधा अंग है। संतो, संत से मिलो, पूछो, ज्ञान के खजाना ले लो। सज्जनों, यही तो जीवन का खजाना है। पंडित जी ने दुल्हा दुल्हन को माला दे दिया, मंत्र उच्चारण करके माला दे दिया, लेकिन उसी दिन से और पति पत्नी का मिलन हो गया। तो आज आत्मा को मिलन कहाँ करना है? आत्मा का मिलन कहाँ होगा? देख लीजिए माता पिता भाइयों, ये जिंदगी ज्यादा दिन का नहीं है। कब किसी का कहाँ जाना है कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए ये जिंदगी होते हुए अपने आप को जानना है। सज्जनों, आज मालिक आ रहा है। नया साल में 4-5 को गुरु महाराज जी ने सारे दिव्य परिवार को दर्शन सत्संग प्रवचन हम लोग सुना और दर्शन भी किया। जिज्ञासु भाइयों,
आप लोग भी साथ दिया होगा। कोलियागढ़ सोलंग में बहुत बड़ा सद्भावना सम्मेलन हुआ था वहाँ। और 4-5 जब हम लोग आ गए दर्शन करके यहाँ घर अपने घर पहुंचा, फिर अभी गुरु महाराज जी ने कहा भाई चलो आसाम में फिर भी प्रोग्राम करना है। फिर आसाम में गुरु महाराज जी फिर आने वाले हैं। ये 23 को आपका बघाई गांव में है और 25 का दीमापुर खटखटी में है। था तो क्या था, विभूजी महाराज जी का टूर प्रोग्राम था। तो विभूजी महाराज जी का टूर प्रोग्राम था, आने वाले थे विभूजी महाराज जी। उसके पास क्या हुआ, तो महाराज जी ने कहा भाई मैं भी चलूं। महाराज जी ने कहा चलो मैं भी चलूं विभूजी महाराज जी के साथ। तो महाराज जी जो वैसा बोलने लगे कि हम भी विभूजी महाराज के साथ चल रहे हैं, तो उधर से माता जी आके बोले, माता जी बोले नहीं मैं भी आपके साथ चलूं। तो अभी माता जी भी आ रहे हैं, विभूजी महाराज जी, गुरु महाराज जी, माता जी तीनों दिव्य विभूति आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। तो आप लोग का नाम का सुमिरन का शक्ति देखो कितना बड़ा होता है, हा? तो इसलिए कहा भक्तों की पुकार है, तू ही पावनहार है। आजा मेरे सतगुरुदेव तेरा इंतजार है। आजा मेरे सतगुरुदेव तेरा इंतजार है। सज्जनों, ये भक्तों का पुकार से ही गुरु महाराज जी आ रहा है। कितना आप लोगों ने पुकारा होगा प्रभु को, आज गुरु महाराज जी दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए अब हम कमर कस के निकालना पड़ेगा एकदम पूरा। जैसे समुद्र में सीता माँ को लेने के लिए समुद्र का पुल बनाए थे। हाँ बैठो है बेटा, बैठो तो शिक्षा बैठो, बस यहाँ बैठो। तो समुद्र का पुल जब बनाए किसका ताकत से, किसका ताकत से, ये भक्तों का ताकत से समुद्र का पुल बनाए। क्यों? एक इतिहास बनाने के लिए एक रात में समुद्र का पुल बना दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु राम से चरण पकड़ के कहने लगा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, ये सामने जो है एक बहुत बड़ा पर्वत है, पहाड़ है, मुझे आज्ञा दीजिए और पहाड़ को हम लेके आएंगे, हमारा समुद्र आसानी से पुल बन जाएगा। तो भगवान राम को तो पता ही था, जाओ हनुमान जाओ लेके आओ। तो हनुमान गया, गधा लेके जब उड़ने लगा नाम का सुमरन से, जब जाकर के पर्वत को हिलाया, हिमालय पर्वत को उठाया, हिमालय पर्वत तो हिलता नहीं है, हाथ से हिलाया हिलता नहीं है। तो हिमालय से कहने लगा, अरे हिमालय, हनुमान जी ने कहा, हिमालय मैं तो तुमको तो आया था लेने के लिए, भगवान का चरण दर्शन पाने के लिए, तो तुम तो हिलता ही नहीं है। तो हिमालय ने कहा, अरे भाई बोलना तो चाहिए, बोलिए। तो हिमालय एक फूल की तरह हल्का हो गया। तो फूल की तरह हल्का हो गया, तो हनुमान जी ने एक हाथ से उठा करके हिमालय को लेकर समुद्र के किनारे में रख दिया। देखता है भाई पुल तो बन गया, रात में पुल बन गया समुद्र में। अभी हिमालय हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तू मेरे को लाया था भगवान का दर्शन के लिए, तुम्हारा काम तो, तुम्हारा सेवा तो बन गया, बन चुका है, अभी मेरा क्या होगा। तो उसी समय में हनुमान जी ने कहा, अरे हिमालय तो क्यों नाराज हो गया, कोई बात नहीं है, ऐसे एक युग आएगा उस समय में, तो हिमालय के ऊपर में
भगवान की रास लीला होगा तो इतना चिंता की बात नहीं है। तो सज्जनों, माता पिता, भाइयों बहनों, तो समुद्र में कौन सेवा किया था? कौन समुद्र का पुल बनाया? अभिनव ने तो बनाया, अभिनव तो बनाया है। आदिवासी लोग थे, अभी का नहीं, आदिवासी, आदि से, आदि सस जुगादि सस नाना है से सस नाना हो से सस, यही भक्त लोग ही बनाया। ये गरीब दुखी भक्तों, प्रभु का भक्तों, शिष्यगण ने वो पुल को निर्माण किया है। सज्जनों, अभी भी गुरु महाराज जी ने, आज देखिए इतिहास में गुरु महाराज जी ने आज आदिवासी भक्तों को इतना आगे बढ़ा दिया है। यही तो है मेरा भक्त है। भक्त मेरा गरीब दुखी भक्त है। कई धनवान जो तो गाड़ी में बैठ करके रुपया गिनती करता है, वो नहीं है। मेरा भक्त है गरीब दुखी, मेरा भक्त है। सुदामा कौन सा धनी थे? सुदामा कौन से धनी थे? वो भी तो सुदामा एक भिखारी की तरह थे, गरीब थे। लेकिन भगवान से कैसे गला मिला लिया, भगवान श्री कृष्ण से कैसे गला मिलाया उन्होंने। सुदामा ने परम भक्त थे, सुदामा भगवान श्री कृष्ण का। तो माता पिता, भाइयों बहनों, आज हम लोग कितना इतिहास बनाना है। सत्युग में ऋषि मुनि लोग, भक्त लोग इतिहास बनाए थे, लेकिन अब हमारा भी इतिहास बनाना है। आज गुरु महाराज जी आए हुए हैं भक्तों को बचाने के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए। तो इसलिए आइए माता पिता, भाइयों बहनों, तन से, मन से, धन से प्रभु का सेवा करना है। भगवान के साथ तो मुट्ठी बांध के रखेंगे तो फिर ये आप लोग सबको पता ही है, ये दरिद्र दुखी हो जाएगा। भगवान के साथ हाथ खुला करना है, खुला खुला दिल से भगवान को सेवा करना है। मुट्ठी बांध के रखेंगे तो मन थोड़ा पीछे हटाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान सब कुछ देता है, भगवान को सब कुछ दिया हुआ है। अब हमको जैसे प्रभु ने दिया हुआ है, ऐसे अब हमको प्रभु को देना है। ये हमारा संसार नहीं है, ये हमारा धन दौलत, ये कुछ भी नहीं है, सब उनकी कृपा से आज मिला हुआ है। प्रियजनों, जब माता लक्ष्मी को पाना है तो माता लक्ष्मी आ गई, उनका सेवा करना है। माता लक्ष्मी धन जो संपत्ति है, भगवान विष्णु के शरण में रख दीजिए तो हमारे घर में कभी दरिद्र आएगा ही नहीं। भक्तों के घर में कभी दरिद्र आए नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रभु का सेवा करना बहुत जरूरी है माता पिता, भाई बहनों। क्योंकि आज जो यहाँ पर शादी का उपलक्ष्य में आज दोनों भाई बहन को आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि आशीर्वाद सबसे बड़ा है, आशीर्वाद देते हुए खूब सुंदर से अपना अंतिम तक आज ये गृहस्थ जीवन को निभाए। क्योंकि गुरु महाराज के चरण में होते हुए, साधु का आज्ञा पालन करते हुए, ये हमारे जो कुंदन भाई है, ये तो एक मीडिया का भी काम करते हैं। आप लोग देखते होंगे प्रोग्राम में जाता है मीडिया, उनका सब फोटो उठा के जगह जगह में भेजता है। अभी भी वो भी मीडिया का काम कर रहा है। तो इसी तरह से तो सभी लोग आशीर्वाद दे, क्योंकि जन्म जन्म अपना पति पत्नी इस्तारा जो निभाए, तो यही सबको आशीर्वाद है सज्जनों। तो आगे समय भी काफ़ी हो चुका है, अभी बारिश भी शायद आने वाला है, तो इसीलिए हम लोग अभी ख़त्म करना है। बहुत दूर से प्रेमी लोग आएगा, खाते पीते तो 11-12 बज जाएगा। तो इसीलिए माता पिता, भाई बहनों, ये जिंदगी है। सब प्रेमी लोग से मेरा यही अनुरोध है, सब कोई नाम का सुमिरन करना है। नाम का सुमिरन सबसे बड़ा चीज है। क्यों? असली खजाना कोई नाम का सुमिरन है। ये बाहर का खजाना तो एक दिन छूट जाएगा, लेकिन नाम अपना है, वो हम लेके भी आए हैं और लेके भी जाएंगे।
तो इसीलिए सब प्रेमी भक्तों नाम का सुमिरन करना है, शाखा शाखा में साधन क्लास करना है। साधन क्लास करके अपना जो जिज्ञासु है और ज्ञान को जानने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। वही सबसे बड़ा गुरु महाराज जी का भगवान का आशीर्वाद है। मैं इतना बोल के समाप्त कर रही हूँ। हरिओम सत्संग प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की, मानव धर्म की।